Hello everyone, welcome to all. Today we are going to discuss about new topic, that is kingdom Monera. Okay, Monera is the first kingdom of 5 kingdom system of classification. Okay, so in this video we will discuss about the Monera, the basic characteristics of the Monera. As you know that the Monera is the kingdom which include all the prokaryotic organisms. Monera is the kingdom which include all the prokaryotic organisms. What is the meaning of the prokaryotic organisms? The meaning of the prokaryotic organism is that the organisms are simpler in the structure and their nucleus is not well developed. उनका nucleus आपका well developed नहीं होता है. The pro means primitive, carrion means nucleus. It means that the organism with the primitive type of the nucleus are known as the prokaryotic organisms. Okay, so these are the organisms which do not have the proper cell structure. इनका कोई भी proper cell structure नहीं होता है as comparison to the eukaryotic cell. Okay, such as bacteria, mycoplasma, actinomycetes, cyanobacteria. Cyanobacteria are also known as the blue-green algae. Okay, so these all are the prokaryotic organisms. ये सारे के सारे आपके prokaryotic organisms हैं. In the 2 kingdom system of the classification, they all are put inside the plant kingdom. इन सबको आपका plant kingdom में रखा गया था. Mycoplasma is also known as the joker of the plant kingdom. इसीलिए mycoplasma को आपका joker of plant kingdom भी बोला जाता है. Mycoplasma is also known as the PPLO and the full form of the PPLO is the pleuropneumonia-like organism. क्या होता है आपका pleuropneumonia-like organism? Okay. Actinomycetes in the पहले आपका एक्टिनोमाइसिटीज में को किस में रखा गया था? आपका फंजाई में भी आपका रखा जाता है. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी इनको आपका एल्गी में पुट किया गया था. लेकिन जब आपको देखा गया कि ये सारे के सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इनको आपका मोनेरा में क्या कर दिया गया? आपका पुट कर दिया गया. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, सॉरी मोनेरा. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा. ओके, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दीज आर द डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ द मोनेरा, यानी कि इसके बेसिस पे हम मोनेरा को आपका अदर किंगडम से क्या कर सकते हैं? आपका सेपरेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. ऑलवेज यूनिसेलुलर इन द स्ट्रक्चर, they are the simplest one and they are the most primitive. Okay, second point is that the cell wall contain peptidoglycan or murine, no cellulose. It is most important that, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. सेल वॉल जो होगा आपका उसमें या तो पेप्टिडोग्लाइकन होगा या फिर क्या होगा? आपका म्यूरिन होगा. ओके, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, आपका प्रोटीन्स होंगे, बट सेलुलोज इज टोटली एब्सेंट. सेलुलोज क्या होगा आपका? टोटली क्या होगा आपका? एब्सेंट होगा. ओके, बट द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट. क्या होगा आपका? सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा बट मेम्ब्रेन बाउंड आपका सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगे? आपके टोटली एब्सेंट होंगे. ठीक है. और जो सेल वॉल होगा वो या तो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बना होगा या फिर आपका म्यूरिन से मिलकर के बना होगा, लेकिन आपका कोई भी सेलुलोज नहीं होगा. आपका सेलुलोज से मिलकर के नहीं बना होगा जैसे आपका हायर प्लांट्स में बनता है. ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आप देखेंगे कि किसी आगे जब हम मोनेरा के पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपका आप पढ़ेंगे आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. तो आप देखेंगे कि किसी में आपका पेप्टिडोग्लाइकन है सेल वॉल में, किसी में आपका क्या है? आपका म्यूरिन है. ओके, तो किसी में आपका दोनों, किसी में दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट मीन्स दैट the mode of nutrition are of different types. They may be the saprophytic, they may be the parasitic, they may be the chemoautotropic, they may be the photoautotropic and the symbiotic. Okay, now coming to the one and each and every point. The first is the photoautotropic. It means that by the utilization of the sunlight energy they can prepare their own food. कुछ आपके मोनेराज ऐसे होंगे जो आपका लाइट से यानी कि सनलाइट से क्या कर सकते हैं? आपका उसके यूटिलाइजेशन से अपने फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं. ऐसो को क्या बोला जाएगा? आपका फोटो ऑटोटॉपिक बोला जाएगा. कीमोऑटोटॉपिक आपके ऐसे मोनेराज होंगे जो डेड एंड डिकेइंग बॉडी के ऊपर आपका फंक्शन करेंगे. उनके डिग्रेडेशन से जो आपका एनर्जी आपका रिलीज होगी उस एनर्जी का फॉर्मेशन अपने फूड के सिंथेसिस में करेंगे. इनको बोला जाएगा आपका कीमोऑटोट्रॉपिक. पैरासिटिक मीन्स दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड अदर एक्टिविटीज. सैप्रोफिटिक दे यूटिलाइज द डेड एंड डिकेइंग पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये आपका डायरेक्टली डेड एंड डिकेइंग पोर्शन को ही आपका फूड की तरह क्या करेंगे? आपका यूज करेंगे. नेक्स्ट इज द सिम्बायोटिक.
Symbiotic association is the that type of the association in which both the organisms are benefited and no one will be harm. यानी कि जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो आपका जो साइनोबैक्टीरिया हैं आपके, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं. Now coming to the next point. The next point is that DNA is naked. Naked means it is not covered by any membrane. जैसा हमें पता है कि हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो आपके यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है आपका, डीएनए इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन से क्या होता है, आपका कवर्ड होता है, जिनको जो आपका साथ में क्या बनाती हैं, आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर को डीएनए टोटली क्या होगा, आपका नेकेड होगा, कोई भी कवरिंग नहीं होगी. इट लाइज इन साइड द साइटोप्लाज्म. आपका साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा इन द कॉइल्ड फॉर्म. किस फॉर्म में, आपका कॉइल्ड फॉर्म यानी कि सर्कुलर फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द न्यूक्लियोइड और द फॉल्स न्यूक्लियस. इसको न्यूक्लियोइड या फिर क्या बोला जाता है, आपका फॉल्स न्यूक्लियस बोला जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फ्लैजिला इफ प्रेजेंट. अगर आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मे बी एब्सेंट. ओके, मे बी एब्सेंट, मे बी प्रेजेंट. तो ये क्या होगा आपका, इफ इट इज प्रेजेंट इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. ये क्या होगा आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो फ्लैजिला होता है आपका, वो आपका सेवरल स्ट्रैंडेड होता है, बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है. 9+2 का अरेंजमेंट होता है उसमें. यहाँ पर वो बोल रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा आपका. ओके, एंड द फ्लैजिला कंटेन अ प्रोटीन नोन एज द फ्लैजिलिन. इस प्रोटीन को क्या बोला जाता है, आपका फ्लैजिलिन बोला जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. फ्लैजिलिन इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ द लास्ट वन, रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल मेथड्स. गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. द रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाय द मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि आपका कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ऑब्वियसली इफ देयर इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन देयर इज अ नो गैमेट फॉर्मेशन. आपका गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन तब होगा जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. बट इन द केस देयर इज अ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. सो द रिप्रोडक्शन इज टाइप ऑफ द एसेक्सुअल वन. तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आपका एसेक्सुअल टाइप का होगा. ओके, तो ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए आपके. Okay, now next one, mitotic spindle is absent. What is the mitotic spindle? When there is a cell division, जब आपका सेल डिवीजन होता है आपका, तो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, यानी कि आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके, इस टाइप का होता है आपका. इनसे क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, आपके अटैच्ड रहते हैं. ये आपके माइटोटिक क्या है, आपके स्पिंडल हैं. दीज आर द माइटोटिक स्पिंडल. सो इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक वन, यानी कि किसके केस में, आपका मोनेरास के केस में क्या होता है, आपका माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनते हैं. ओके, तो इनका जो माइटोटिक डिवीजन है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपका माइटोटिक स्पिंडल्स आर टोटली एब्सेंट. सम ऑफ द मोनेरास हैव द एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल नाइट्रेट्स. दिस एबिलिटी इज फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया. किस में पाई जाती है, आपकी साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है. साइनोबैक्टीरिया हैव द पावर टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये क्या कर सकते हैं, आपका नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं आपका. और ये किस में पाई जाती है, आपकी बैक्टीरिया में भी पाई जाती है. आपकी राइजोबियम हो गया आपका. राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, आपका राइजोबियम इज द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है. तो साइनोबैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट के लिए हम किसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, आपका बैक्टीरिया को, और किसको, आपका साइनोबैक्टीरिया को. ठीक है, जैसे एनाबिना हो गया आपका, नॉनस्टॉक हो गया. एनाबिना एंड नॉनस्टॉक आर द साइनोबैक्टीरिया एंड दे हैव द पावर टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. और इसके बाद आपके जो क्या आ गए, आपके बैक्टीरिया आ गए. सो इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया में आपका राइजोबियम हो गया आपका. ठीक है, बहुत सारे आपके बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या कर सकते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, आपका फिक्स कर सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज द आर्ची बैक्टीरिया. क्या है आपका आर्ची बैक्टीरिया. मैंने कहा था अगर हम मोनेरास पढ़ेंगे तो मोनेरास में हम 3 किसको पढ़ेंगे, आपका डिवीजन को पढ़ेंगे. आर्ची बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, और आपका क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे. आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ची बैक्टीरिया. तो आर्ची बैक्टीरिया आर द स्पेशल सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स. यानी कि आपका बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट्स में क्या करते हैं, आपका सर्वाइव करते हैं. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. दे कैन सर्वाइव इन द सॉल्टी एरियाज. जब सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव करेंगे उनको हेलोफाइल्स बोलेंगे. हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करेंगे उनको थर्मोएसिडोफिल्स बोलेंगे. मार्सी एरियाज में सर्वाइव करेंगे उनको मिथेनोजेंस बोलेंगे. ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द
आर्ची बैक्टीरियाज। पहले हम आर्ची बैक्टीरियाज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसकी जो 3 टाइप हैं आपके, क्या क्या है आपका, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और आपका मिथेनोजेंस, उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। ये आपके सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं आपके, क्योंकि आपका हार्श एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, आपका सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन इज दैट फाउंड इन द stressed environmental conditions such as the high salt content, the Dead Sea, the Great Salt Lake, edge of the ocean, hot sulfur springs, volcanic walls, gut of the animals। तो इतने हार्श एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं आपके। Therefore they are the special type of the living organisms। सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकन, मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करेंगे मोनेराज की, तो मोनेराज में किसी में आपका पेप्टिडोग्लाइकन होगा, किसी में क्या होगा, आपका म्यूरिन होगा, किसी में दोनों होंगे। तो ये कह रहा है कि इसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। एंड द सेल इज कंपोज ऑफ नॉन सेलुलॉजिक पॉलीसैकेराइड्स। मैंने कहा था ना, पॉलीसैकेराइड्स और आपका प्रोटीन से मिलकर के बने हो सकते हैं। तो ये आपका नॉन सेलुलॉजिक पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एंड द सम मेंबर्स, इन द सम मेंबर्स इवन इट इज एब्सेंट। ये क्या होता है आपका, कुछ मेंबर्स में आपका सेल वॉल क्या होता है, आपका एब्सेंट भी होता है। दीज आर द फीचर्स, ये डिफरेंट टाइप के जो आपका सेल वॉल है आपके, उनका प्रेजेंट होना, उनका एब्सेंस होना, उसमें पॉलीसैकेराइड्स का प्रेजेंट होना, प्रोटीन का प्रेजेंट होना, यही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। आपका यही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, हेल्पफुल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट मोस्ट ऑफ द आर्ची बैक्टीरिया आर द कीमोऑटोट्रॉपिक। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हमने पढ़ा था कि मोनेराज में भी द फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमोऑटोट्रॉपिक, बहुत सारे हमने उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। लेकिन जो आपका आर्ची बैक्टीरिया होता है, आर्ची बैक्टीरिया इज मेनली इज ऑफ द कीमोऑटोट्रॉपिक। ये मेनली क्या होते हैं आपके, कीमोऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये आपका आज का ये कंप्लीट होता है आपका आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हमारे कंप्लीट होते हैं। क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि ये क्या होते हैं आपके हार्श एनवायरनमेंट में क्या होते हैं आपके, पाए जाते हैं। प्रिमिटिव टाइप के आपके प्रोकैरियोट्स हैं। जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकन आपका एब्सेंट होता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से याद करना है, लैक ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन एंड मेड अप ऑफ द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स एंड सम प्रोटीन। ओके, किसी में आपका प्रेजेंट नहीं भी होता है आपका। यही कंडीशन है आपका कि जिसकी वजह से आपका हार्श कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, आपका सर्वाइव कर सकते हैं। एंड मोस्टली दे आर द कीमोऑटोट्रॉपिक। कीमोऑटोट्रॉपिक मीन्स ये क्या करेंगे, आपका किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके डिकम्पोजिशन से जो क्या होगा, आपका एनर्जी, आपकी जो केमिकल एनर्जी आपकी जो रिलीज होगी, उस केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे अपने फूड के सिंथेसिस में। ओके ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द आर्की बैक्टीरिया, दैट इज द हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड द मिथेनोजेंस। ओके।